منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ مولا رات دن تیری رحمت برستی ہے، جہاں پہ مولا رات دن تیری رحمت برستی ہے۔ شب برات کے حوالے سے اگر آپ کے اندر پاور ہے، چھمتا ہے، واقعی اگر آپ قوت رکھتے ہیں، اس شعر کو سننے کے بعد خود کو روک لیجئے گا، روکنے والے روک لیں گے، جو انشاءاللہ مچلنے والے ہیں وہ مچل جائیں گے، سبحان اللہ ضرور کہیں گے اگر سے مجھے روپیہ دے یا نہ دے۔ سنیں ارے رفتا کہ میلاد سرکار مناؤ آج شب برات، اب تو بول دیجئے ذرا تم بول دو مسکرا کے سبحان اللہ۔ میلاد سرکار مناؤ آج شب برات ہے، خوابیدہ قسمت جگاؤ آج شب برات ہے، اور جو چلتا ہے اس کو جلاؤ، فاتحہ اور نیاز دلاؤ، جو چلتا ہے اس کو جلاؤ، فاتحہ اور نیاز دلاؤ، پیارے نبی کا صدقہ لٹاؤ آج شب برات ہے، سرکار مناؤ آج شب برات ہے، خوابیدہ قسمت جگاؤ آج شب برات ہے، جو جلتا ہے اس کو جلاؤ، فاتحہ اور نیاز دلاؤ، پیارے نبی کا صدقہ لٹاؤ آج شب برات ہے، پیارے نبی کا صدقہ لٹاؤ آج شب برات ہے۔ آج کی رات اللہ کی رحمت صدائیں دے رہی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا مجھے بخش دو، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اسے روزی عطا کروں اور اس میں برکت عطا کروں، یعنی آج کی رات اللہ کی رحمت صدا دیتی ہے۔ تو نوجوانوں مسلمانوں آج کی رات برباد نہ کریں۔ اے بابو پیر سمیٹو، ابھی عمر ہے، اتنے بھی بوڑھے نہیں ہوگے کہ 10 منٹ میں تھک گئے پاؤں پھیلانے لگے۔ حضرت محترم اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ وقت نہیں ہمارے پاس، حضرت قاری رفعت صاحب اللہ کو میں آپ کے حوالے کروں، بہت اچھے انداز میں نعت بھی پڑھتے ہیں، اور اگر وقت آ جائے ایک اچھی تقریر بھی کر لیتے ہیں، ایک اچھا خطاب بھی کر لیتے ہیں، بہت اچھے مقرر کہلائے جاتے ہیں حضرت قاری رفعت رضا صاحب۔ اچھا نیا شعر سنیں گے آپ؟ نیا شعر سنیں گے؟ ہاں فری میں تو اپنے باپ کو بھی نہیں سناتے ہیں۔ محبتوں کے ساتھ بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ میں 4 مرتبہ اس لیے پڑھا کہ آپ لوگ ضرور سبحان اللہ بولیں گے، ہے نا؟ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا ماشاءاللہ۔ دیکھیے ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، 1 2 3 4 5 ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ اب کچھ بھی ہے میرا ہے بھائی، آپ لوگ کیوں نظر ڈال رہے ہیں اس میں؟ آئیے ایک شعر سن لیں، قاری رفعت صاحب اللہ کے استقبال میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ بلبل کو پھول خوشبو پسند ہے، بلبل کو پھول کو خوشبو پسند ہے، میری پسند یہ ہے کہ مجھے پھول پسند ہے۔ خلوص و عشق و محبت کا جام لایا ہوں، بصد خلوص بصد احترام لایا ہوں، قبول کیجئے تحفہ بڑا انوکھا ہے، معاف حضرات کے سامنے تازہ سلام لایا ہوں، السلام علیکم۔ اب میں جتنا آواز سے سلام کر لیتا ہوں اتنے آواز سے تو سب جوابوں دے دو، السلام علیکم، السلام علیکم، اتنے آواز سے۔ حضرات محترم، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ آج کی رات ہمارے جعفر گنج کے نوجوانوں کے حساب سے بولیے تو تھوڑا سا بیکاری رات ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ راستے میں دیکھے، ایک دو کو پیا ہوا دیکھے ہیں، افسوس کی بات۔ مسلمان اس سے اچھا تو ہندو ہے نا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہندو ہے، مسلمان سے اچھا ہندو ہے، ٹھیک ہے۔ جب اسلام میں شراب پینا
दारू पीना, तारी पीना सब कुछ जो हराम है, तो उसको पी करके फायदा क्या है फायदा। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स दारू पीता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके घर में 40 दिन तक बरकत नहीं देता। न उसकी इबादत कबूल होती है, न उसकी नमाज कबूल होती है। जी, ये मैं नहीं कह रहा, मेरा बाप नहीं कह रहा, परवरदिगार कह रहा है। हजरात, अच्छा हमसे तकरीर सुनिएगा कि नात सुनिएगा? अच्छा, तकरीरों सुनिएगा, नातों सुनिएगा? हजरात मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। कहदा सुभान अल्लाह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबे गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबे गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरात मोहतरम, आइए बड़ी तेजी के साथ नबी के कौनैन मुस्तफ़ा जाने रहमत, बेकसों के कस बेबसों के बस, सज्जा है लामका मालिक व इंसो जा, सज्जदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन, ताहा व यासीन मुरादुल मुस्ताकीन, शमशीर आरिफीन जाने आलमीन, सिराजुस सालिकीन, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, हम सबके प्यारे आका यानी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह बेकस बना में दुरूद पाक पढ़ते हैं, जिनके अमामा शरीफ को जब बरेली के इमाम देखते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं ये कि ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का, और तेरी नस्ले पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का। ये जो शेर है बच्चा बच्चा नूर का, ये पता है कौन है? मैदान करबला में जो आज हम लोग खूब मुहर्रम कहते हसल हुसैल हसल हुसैल, जो कहते हैं हसल हुसैल तो कह देते हैं, लेकिन हकीकत में हसल हुसैल नहीं है, वो हसन हुसैन है। यह है इमाम हसन और सरकार इमाम हुसैन। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। कौन है? नवासे। और किनके बेटे हैं पता है? दामादे मुस्तफ़ा, शेरे खुदा, जिसको लक़ब है जिनका शेरे खुदा, हजरते अलीजुल मुर्तज़ा कर्रमहुल्लाहु वजहुल करीम, उनके लड़के हैं ये। हजरात आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, कि ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। मैक लीजिए,
सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का। हजरात मोहतरम आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह पे कसबना में दुरूद पाक पढ़ते हैं। आज हमारे घर में भी बच्चा पैदा होता है, आपके भी घर में बच्चा पैदा होता है, लेकिन जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो आप क्या करते हैं? आप यही चीज करते हैं कि जब आपका बच्चा पैदा होता है 3 महीने 6 महीने या साल भर का हो जाता है, कितना महीना? 3 महीना या 6 महीना या साल भर का हो जाता है, तो आप अपने बच्चे को झूले में लटाते हैं कि नहीं? नहीं लटाते हैं। अच्छा, कौन कौन आसमान में लटकाते हैं? ऐसा तो है नहीं, सब झूले में लटकाते हैं। सब लोग झूले में लटकाते हैं और झूले में लटकाने के बाद उसमें एक खिलौना भी लटका देते हैं, ताकि अगर बच्चा रोए तो वो बच्चा झूले को देखकर, उस खिलौने को देखकर वो बच्चा मुस्कुराने लगे। लेकिन कुर्बान जाओ अपने आका पर, वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बचपन के जमाने में हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर से हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर तशरीफ लेकर के चले जाते, किसको? हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लेकर जाते हैं, लेकर के जाने के बाद क्या करती है? करती ये है कि हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बकरी चला मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुला देते हैं। किस पर सुलाते हैं? झूले में सुलाते हैं। सुभान अल्लाह जी, झूले में सुला करके हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बकरी चराने के लिए जंगल के तरफ चली जाती है। सुबह जाती है और शाम को याद आती है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को मैं घर पर अकेले छोड़कर आई हूँ। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह भूखा होगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तड़प रहा होगा, रो रहा होगा, बिलख रहा होगा, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत पर, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बचपना पर, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन के जमाने में हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब घर तशरीफ लाती है, क्या देखती है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम झूला में लेटे हुए हैं, झूला में लेट करके उंगली का इशारा कर रहे हैं आसमान की तरफ। अगर सूरज पश्चिम की तरफ है तो वह सूरज उत्तर की तरफ चला जा, पूरब की तरफ चला जा रहा है। अगर दक्षिण की तरफ है तो वह सूरज उत्तर की तरफ जा रहा है। अगर पूरब की तरफ है वह सूरज पश्चिम की तरफ जा रहा है। जब इसी को बरेली के इमाम, हम सब के रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिदवान की जब नजर पड़ती है वो फैज़ाने आला हज़रत, आशिक़ाने आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया बस्ती बस्ती करिया कौन मेहमाने काबा इल्म का दरिया लाए अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत हजरत मोहतरम आशिक रसा इमाम अहमद रसा खान फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर जब इस रिवायात पर पड़ती है, जब इस हदीस रसूल पर पड़ता है तो झूम करके कलम उठाते हैं, कहते हैं लिखो इमाम अहमद रसा, लिखो अहमद रसा। क्या लिखते हैं कि पूरा जुलते पाँव पड़ते चांद इशारे से बचा कि सूरज उल्टे पाँव पड़ते चांद इशारे से बचा अंधे नदी देख कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नदी देख कुदरत रसूलुल्लाह की। हज़रात मोहतरम आइए जी लगा करके दुरूद पाक पढ़ते हैं। आज हमारे पास भी ज़बान है, आज आपके पास भी ज़बान है, आज हमारे पास जो ज़बान है आपकी ज़बान से और हमारी ज़बान से सिर्फ चुगलखोरी होती है, सिर्फ बुराइयां नजर आती हैं, सिर्फ उल्टी गिबत नजर आती है। हदीस पाक में आता है अल-गिबतु अशद्दु मिनल कत्ल, गिबत कत्ल से बढ़कर है। किससे बढ़कर है?
कत्ल से बढ़कर है। आज तो कर देते चाय का दुकान में बैठ करके, अब मौलवी साहब ने ये किया, डॉक्टर मासूम नहीं किया, आरिफ नहीं किया, फला नहीं किया, वो नहीं किया, ये मुझे ही कहते हैं। लेकिन शर्म करो मुसलमानों, जाफरगंज के मुसलमानों, ये हदीस याद कर लो और अपनी डायरी में नहीं, अपने दिल में नहीं, अपने दिमाग में ये हदीस पाक को बैठा लो। हदीस पाक में हजरत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं, अल गीबतु अशद्दु मिनल कत्ल, गीबत कत्ल से बढ़कर है। इसी जबान से अल्लाह अल्लाह कहते हैं और इसी जबान से मौलवी साहब को गालियों देते हैं। अफसोस की बात है। मैं देखिए, मैं हक कहूंगा, मैं सिर्फ रब से डरता हूं और किसी के बाप से नहीं डरता। अल्लाह से जी, न मैं डरता हूं न मेरा बाप डरता किसी से, सिर्फ रब से। जो रब से डरता है उनसे सब डरता है, जो रब से नहीं डरता वो सबसे डरता है। जी हजरात मोहतरम, मैं ये कहना चाहूंगा, आप नबी की उम्मत है, नबी पर जान लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। क्या नबी ने कभी किसी को गाली दिए थी? एक भी हदीस या एक भी जुमला ला करके दिखा दीजिए, मैं उनका गुलामी करूंगा। कसम से मैं मौलाना लाइन छोड़ दूंगा अगर एक हदीस ला करके या कोई मौलाना से पूछ करके बता दे। जी नहीं, अगर ये भी कोई ला करके बता दे कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जिंदगी में कभी भी किसी की बुराई किए हो, ये भी हदीस है। जी मैं अपने बाप के घर से नहीं कह रहा हूँ, ये हदीस पाक है, मैं किताब का हवाला दे करके कह रहा हूँ। आप हमारे मदरसे में कभी भी 24 घंटे में कभी भी हमको कॉल करके बुला सकते हैं। सामने ही मदरसा है, मदरसा गौसे अनवार रसा। मैं हवाला दे करके आपको मैं दिखा दूंगा। हजरात मोहतरम, लेकिन कुर्बान जाओ अपने आका पर कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का के गलिया पे गुजर रहे थे कि रास्ते में लोग उनके लिए कांटे बिछा दिया करते थे। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्के की गलिया में गुजरते थे तो एक औरत थी जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन मुबारक पर हमेशा कचरा फेंका करती थी। आज भी मक्का शरीफ में वो घर मौजूद है। जी मुझे परसों पता चला, मुझे एक हाजी साहब ने बताया, जब मैं ये वाकया को कहीं और बयान कर रहा था तो एक हाजी साहब ने कहा, जी हाफिज जी आज भी वो घर मौजूद है, आज भी वो खिड़की मौजूद है जहां पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन मुबारक पर कचरा फेंका करते थे। आप सोच लीजिए, आप समझ लीजिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर पैदा न होते तो न जमीन को बनाया जाता, न आसमान बनाया जाता। आज न शबे कदर आती, न शबे मेराज आता, न शबे बरात आता, न रमजान आता, न कुरान आता, कोई चीज दुनिया में नहीं होगी। हजरात मोहतरम कुर्बान जाओ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने हुकूमत पर कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर एक औरत थी जो बार बार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कचरा फेंका करती थी। अगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते, अगर बद्दुआ देते तो वो औरत बर्बाद हो जाती। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि उनके लिए दुआ की, है अल्लाह इनको हिदायत नसीब अता फरमा। जब बरेली के इमाम आशिक रज़ा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान देते हैं तो वो कहते हैं क्या कि वो ग़ज़बा जिनको साको बन के कोना जी का है, वो ग़ज़बा जिनको साको बन के कोना जी का है, उसकी नाफिज़ को सलाम। हजरात मोहतरम आइए जी लगा करके दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना शफीअ हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तकरीर शुरू कर दे, नहीं, मैं भी सिर्फ मूड बना रहा हूँ, अभी नात पढ़ना बाकी है। हजरात आइए बड़ी तेज़ी के साथ कलाम हुजूर ताजुश शरिया जो हमारे नकीब अहले सुन्नत हज़रत आरिफ रज़ा नूरी उर्फ कटिहारी, उनका फरमाइश है कि आप एक कलाम हुजूर ताजुश शरिया सुनाएं। फिर उसके बाद भोजपुरी नात वगैरह वगैरह जो है उनकी भी फरमाइश है। मैं कलाम हुजूर ताजुश शरिया पढ़ता हूँ, एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिदवान फरमाते हैं कि दाग फुरकते तैबा, दाग फुरकते तैबा, दाग फुरकते तैबा, कल्ब मुज़महिल जा सारे लोग हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें या हबीब अल्लाह के दाग फुरकते तैबा, जीना मेरे रसूल, देखो नबी ने मदीना मेरे रसूल, अशकों की रोशनी से रुए हयात पर तकलीफों मदीना। यह हमारे नकीब अहले सुन्नत हजरत कारी आरिफ रज़ा की मोहब्बत है। मैं शेर पढ़ता हूँ, समात करें। इसीलिए तो हुजूर ताजुश सही वक्त में सही शेर देते हैं कि मेरा दम निकल जाता, मेरा दम निकल जाता, मेरा दम निकल जाता, उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता, उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता। मैं मिल चाहता। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि मौत लेके आ जाती, मौत लेके आ जाती, जिंदगी मदीने कि मौत लेके आ जाती, जिंदगी मदीने और
पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरमा एक मर्तबा और नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम खुतबा मसनूआ के बाद मैंने जिस आयत करीमा को अपना, जिस हदीस पाक को अपना उन्वान सुखन बनाया है, हदीस पाक में आता है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया, बगौर समात करें कि शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है। कहते सुभान अल्लाह। मैं देखिए अब नात नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ तकरीर करूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह तबारक व तआला का महीना। किसका महीना है? अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। जो आका होकर के, जो सबके आका होकर के वो कह रहे हैं कि शाबान मेरा महीना है, तो बताइए कि उम्मतियों को क्या करना चाहिए। हजरात, मैं उससे पहले कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहूंगा। जो भी मैंने बार बार आप हजरात को दुरूद पाक पढ़ाया, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इसमें कुरान पाक पढ़ने नहीं आता, लेकिन हदीस पाक में आता है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 मर्तबा पढ़ने का सवाब अता फरमाता है और उसके 10 गुनाहों को माफ फरमा देता है और उसके आमाल में 10 नेकियां बढ़ा दी जाती है। हज़रात मोहतरम, आज एक और हदीस पाक समाप्त करें कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अली करमहुल्लाहु वजहुल करीम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक सफर में जा रहे थे, एक जगह जा रहे थे कि एक थोड़ी ही दूर गए थे कि एक मकाम पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। ज्यादा दूर नहीं गए थे कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जैसे ही चलना था कि थोड़ी ही देर में एक आवाज आई, बड़ी प्यारी आवाज थी। अल्फाज ये थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत अली करमहुल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने चारों तरफ देखा, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा था। फिर मैं दोबारा फिर थोड़ी देर और आगे चला कि दोबारा वही आवाज आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत अली करमहुल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, फिदा का वो उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह, इस पहाड़ में आपका कौन आशिक है जो इस तरह जज्बा अकीदत और मोहब्बत के साथ आप पर दुरूद व सलाम कर रहा हो, कुर्बान जाओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ अली, हजरत क्या फरमाते हैं, ऐ अली तुझे वह पहाड़ नजर आ रहा है। हजरत अली फरमाते हैं, जी मेरे आका मुझे वो पहाड़ नजर आ रहा है। हजरत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर फरमाते हैं, क्या उसके ऊपर एक चोटी मौजूद है। हजरत अली फरमाते हैं, जी मेरे आका उसके ऊपर एक चोटी मौजूद है। हजरत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, क्या उसके ऊपर एक पत्थर मौजूद है। क्या फरमाते हैं, क्या उसके ऊपर एक पत्थर मौजूद है। हजरत अली करमहुल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, जी मेरे आका मुझे वो पत्थर नजर आ रहा है। बस मेरे आका अलैहिस्सलातु हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़बान मुबारक से इतना सुनना था कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बस वही पत्थर होकर बारगाह रिसालत मआब में यानी मुझ पर दुरूद व सलाम कर रहा है। हज़रात देखिए, पत्थर होकर के जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह बेकसपना में इस तरह जज्बे अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ रहे हो, तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। बताइए हम इसकी आदत क्यों नहीं लगा सकते हैं।
मैं वक्त ज्यादा ना लेकर के बस थोड़ी ही देर में 5 से 10 मिनट और मुझे संभाल लें, उसके बाद मैं अपनी बातों को खत्म कर दूंगा। और एक पैगाम दे रहा हूं, आज लगभग हर मोहल्ले में फटक्का बजा है, क्योंकि मेरा घर तो यही है ना, हम हर जगह घूमते हैं, देखते रहते हैं। बताइए, फटक्का बजाना कहीं से जायज है? हर मौलाना मना करता है कि नहीं करता है? आप लोग बोले मना करते हैं कि नहीं करते? और जो मौलाना साहब जो आते हैं तकरीर करते हैं वो लोग मना करते हैं। बताइए, हम लोग भी मना करते हैं। इतना तब मिलाद हुआ, हर जगह मना किए, फटक्का हो गया, छुरछुरी हो गया, और कौन सी जो आता है वो सब भी बजाता है, जिसमें आवाज़ सब खूब करता है, वो सब बताइए बजाना चाहिए? हजरात मोहतरम, ये गलत बात है। देखिए, बच्चे की गलती नहीं, इसमें माँ बाप की गलती है। हम बच्चे की गलती न ठहराएंगे। अब देखिए, माँ बाप की गलती कैसे है? बच्चे ने जिद धर करके कहा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाबा, मुझे फटक्का दिलाइए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा, हलवा नहीं खाऊंगा, पूरी नहीं खाऊंगा, सब्जी नहीं खाऊंगा। बताइए, अब्बा को दिलाना चाहिए? बिल्कुल नहीं दिलाना चाहिए, एकदम खाना छोड़ दे, लेकिन नहीं दिलाइए। उसी बच्चे को बोलिए, मेरे साथ बैठ जाओ, मेरे साथ बैठ करके दुरूद पाक का वजीफा करो, मेरे साथ बैठ करके कुरान पाक का तिलावत करो, मेरे साथ बैठ करके तुम नफल नमाज़ें अदा करो। लेकिन जब बाप पढ़ेगा तब ना बच्चा पढ़ेगा। बाप ये खुद न कर रहा है तो बच्चा कहाँ से करेगा? अफसोस की बात है, आज हमारे माहौल इतना गंदा हो चुका है। हजरात मोहतरम, अब आइए एक हदीस पाक और मैं सुना करके अपनी बातों को खत्म कर दूंगा कि हजरत अली करमहुल्लाह वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि जो ये शब बारात की रात है, आज की ये जो रात है, इसकी क्या फजीलत है मैं बता दूं कि आज ही की रात वो रात है। इसी रात में क्या होता है पता है आपको? इसी रात में कौन इंसान मरने वाला है और कौन इंसान जिंदा रहेगा, सब कुछ इसी रात में लिखा जाता है जी। अब देखिए, अब कैसे अच्छा इंसान को अच्छा चीज लिखा जाता है बताएं? अगर आज की रात में अभी मिलाद के बाद, इस महफिल के बाद जब आप अपने घर पे जाइएगा, डायरेक्ट सो जाइएगा, तो बताइए मिलाद में आकर के कोई फायदा होगा? नहीं। अब यही मिलाद के बाद जब आप घर चले जाइएगा, जब आप अपने घर पर जाने के बाद अपने पटिया को बिछाइएगा, चटाई बिछाइएगा, मुसल्ला बिछाइएगा, अगरबत्ती 1 गो या 2 गो 3 गो जलाइएगा और बैठ करके कुरान पाक का तिलावत कीजिएगा, 14 रकात नफल नमाज अदा कीजिएगा और रब की बारगाह में दुआ कीजिएगा, ऐ रब के काबा, ऐ खालिक के कायनात, तू सब कुछ जानता है, हर चीज का मालिक और मुख्तार है, तू सब कुछ जानता है। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, जो मेरे गुनाहों की बख्शिश अता फरमा। जब आप इतना कहेंगे, जब आप रब की बारगाह में इतना फरियाद सुनाएंगे, तो रब कहेगा, देखो देखो फरिश्ते को हुक्म देगा, देखो देखो वो इंसान, देखो देखो आरिफ बाबू ने मेरी बारगाह में रो रो करके तौबा किया है, देखो देखो डॉक्टर मासूम कर करके मेरे रब के बारगाह में तौबा किया है। ऐ फरिश्ते तुम गवाह हो जाओ, ऐ फरिश्ते तुम गवाह हो जाओ कि इन्होंने तौबा किया और इस्तिग़फ़ार करके नमाज को शुरू कर दिया, रोजा शुरू कर दिया, तिलावत कुरान शुरू कर दिया। अब देखिए, अच्छा एक बात और बता दें, खाली जलसा कराने से मुसलमान होते हैं क्या? बताइए। मिलाद जलसा जो करवाते हैं, इतना मौलाना साहब लोग खर्चा करते हैं, बुलाते हैं, हम लोग को बुलाने में खर्चा जो होता है, जनरेटर लगाते हैं, मरकरी है, कैमरा है, हर चीज़ है। अच्छा, इसमें पैसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। अब बताइए, इतना पैसा खर्चा करके हमको बुलाए और उलमाए कराम को जो बुलाए हैं, तो क्या सिर्फ यहीं तक? हमारा अब्बू हुजूर एक बात हमेशा कहते हैं, आजकल मिलाद में जो लोग आते हैं ऐसे झाड़ करके आते हैं और जब उठते हैं तो ऐसे झाड़ देते, यानी कि जो हम वहाँ सुने वही झाड़ करके ख़त्म कर दिए। ऐसा नहीं करना है। अब देखिए, मैं यह कहूँगा, आप मिलाद में आए हैं, अच्छी बात है और ये सुन्नत भी,
नात सुनना नबी की सुन्नत है, तकरीर सुनना ये बुजुर्गान दीन का तरीका है, सुन्नत है। अब देखिए महफिल में आए हैं, शबे बारात की रात है, बख्शिश की रात है। इस रात में बताइए कितने लोग सिद्ध के दिल से तौबा किए करेंगे? सब लोग बोले हैं इंशाअल्लाह। हाँ हाँ हाथ उठा के रखिए, हाथ उठा के रखिए पक्का। हम उधर भी देख रहे हैं। हाँ न करना, मुँह देखा तरफ सबका, हमें सबका पहचान है बाबू। कांड हाथ उठाओ, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। ये जो वीडियो है ना QRR के ऑफिशियल चैनल पे, मेरा नाम पे कारी रिफत रजा कटिहारी ऑफिशियल चैनल पर अपलोड होगा। सब कुछ जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ सब कुछ यूट्यूब पे जाएगा। जी आरिफ भाई आप यूट्यूब पे सर्च करके दिखवा दीजिएगा सबको। इतने लोग बैठे हैं, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। नबी से मोहब्बत कर रहे हैं, बख्शिश की रात में आप लोग बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो बताइए आज से कौन कौन दाढ़ी रखेंगे? रखिएगा दाढ़ी? रखना दाढ़ी ने रखिएगा दाढ़ी। अब आइए मैं एक हदीस सुनाता हूँ। एक साहबी रसूल थे जिनके पास सिर्फ एक दाढ़ी था। कहता सुभान अल्लाह, एक दाढ़ी थे। वो एक दाढ़ी जो जब भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया करते थे तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको देख करके मुस्कुरा दिया करते थे। कहते सुभान अल्लाह, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते थे तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जब वो सहाबी को देख करके मुस्कुराते थे तो वो सहाबी सोचने लगे कि शायद कि ये मेरा जो दाढ़ी एक दो दाढ़ी है वो शायद कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए देख करके मुस्कुराते हैं। वो सहाबी क्या किए, जब वो सहाबी एक दाढ़ी था उनको कटा लिया। क्या किया? कटा लिया। कटाने के बाद जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या किए पता है? मुंह फेर लिए जी। बोले एक दाढ़ी में 70 फरिश्ते रहते हैं। सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। आप बताइए जहाँ पे 70,000 फरिश्ते जिनकी बारगाह में हाजिर होंगे तो बताइए उनका हम उम्मती हैं और 70 फरिश्ते। आप बताइए किसके दाढ़ी में पता नहीं कितने बाल होंगे। आप कैलकुलेटर से हिसाब कीजिएगा। बच्चा चुप हो सब। तो आप लोग दाढ़ी रखिएगा पर इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके कहें इंशाअल्लाह, हाथ उठा करके इंशाअल्लाह। नमाज तो नहीं है पढ़िएगा, पढ़ेंगे। नमाज का वादा नहीं कराएंगे, खाली जुम्मा जुम्मा है ना। हाँ। अरे मुसलमान 50 वक्त का अगर नमाज रहता ना तब पता चला 5 वक्त झक मरा के पढ़े करते। जी हकीकत बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मेहरबानी है जो 45 वक्त का नमाज कम हो गया, नहीं तो 50 वक्त की नमाज पढ़ना पड़ता। 5 वक्त का नमाज तो है ये है, लेकिन 50 वक्त का नमाज आया था। जो शख्स 5 वक्त की नमाज सिद्ध के दिल से पढ़ेगा अल्लाह तबारक तआला उसको 50 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब। देखिए मैं तकरीर तो नहीं करता, ये आरिफ भाई की मोहब्बत है और उलमाए कराम की जो मोहब्बत है मैं सिर्फ बोल लेता हूँ। ये मैं आपको सबक दे रहा हूँ। आप लोग दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह पक्का। शबे बारात की रात हम नहीं देखेंगे, देखने भी आएंगे भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं कौन है आप, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला देखेगा। बताइए हमसे ना छुप जाएगा, अल्लाह से कहाँ छुपिएगा? छुपेंगे आप लोग? अल्लाह से तो नहीं छुप सकते, आरिफ से छुप सकते हैं, अंजार से छुप सकते हैं, और भी जो है सब लोग सब छुप सकते हैं, लेकिन रब से नहीं छुपिएगा। रब के पास क्या मुंह दिखाइएगा जब आप मरेंगे, जब आपके सामने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो बताइए तो आप उस वक्त बगैर दाढ़ी वाला जाएंगे? जी नहीं। आप लोग इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। मैं इसी चीज का, और क्योंकि ये मुसलमानों की पहचान है, मैंने उस दिन मैं एक सफर में जा रहा था। ए बाबू तुम लोग हंसी मजाक करते हो, महफिल को तुम लोग खिलौना बना लिए हो। हकीकत में महफिल की जो रौनक होती है ना उसको ख़त्म कर देते हो। जो हम ये पटिया जो खाली नज़र आ रहा है उधर, तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बज़ाहिर आदमी नहीं लेकिन फरिश्ते मौजूद हैं। जी फरिश्ते मौजूद हैं।
आप और हम नहीं देख सकते, लेकिन आंख वाला जरूर देखता है। जी हजरात, आज एक शेर पढ़ता हूँ भोजपुरी में, उसके बाद मैं खत्म करता हूँ कि घर घर के घर घर तुम्हारे घर से, घर घर तुम्हारे घर से, आंगना आका तुम्हारे मोर पहाड़ से, आंगना आका तुम्हारे मोर पहाड़ से। अब क्या होता है कि आका कयामत के, आका कयामत के घर में बारात बा, आका कयामत के घर हमें बारात बा, और धूप से सारा बदनवा जलत बा, और धूप से सारा बदनवा जलत बा। अरे चादर हटे होना, चादर हटे होना मोरे सारे से, आंगना आका तोहरे मोर पहाड़ से, आंगना आका तोहरे मोर पहाड़ से। और तोरे नाक कटरी लेके कहता सुभान अल्लाह, के बोरिया की गटरी लेके, बोरिया की गटरी लेके आका चलते हैं, असीरा नबल देखे बोरिया का हाथ है, सीरा नबल देखे बोरिया का हाथ है। अरे का कहते हैं कि कलमा पढ़ाता आका, कलमा पढ़ाता आका, कलमा पढ़ाता आका, जियरा 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 काहे से, आंगना आका तोहरे मोर पार से, आंगना आका तोहरे मोर पार से। आखिरी शेर, फिर उसके बाद खत्म। अच्छा, मदीना जाना चाहते हैं? मदीना जाना चाहते हैं? शेर समाप्त करें, कहते हैं सुभान अल्लाह, के जाई के मदीने में, के जाई के मदीने में कगना बयरिया, जाई के मदीने में कगना बयरिया, हम के बुलाल आका बयरिया। अभी सिर्फ अपने लिए दुआ कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग के लिए कर दें, कर दीजिए, कर दें पक्का, ऐसे नहीं करेंगे। फ्री में आता है क्या हर चीज? जाइए डॉक्टर मासूम साहब के पास, फ्री में दवा दे दे, फिर बताइए। देते हैं भाई, देते हैं माशाल्लाह, देते हैं। उलमाए कराम की बारगाह में सिर्फ उलमाए कराम, ये उनकी, ये उलमा से मोहब्बत का नतीजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा जो उलमा से मोहब्बत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया में भी कामयाब रहते हैं, वो आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। मैं शेर पढ़ता हूँ फ्री में नहीं जी, समझ के जाई के मदीने में, जाई के मदीने में कहना बजरिया, जाई के मदीने में कहना बजरिया, सबके बुलाला आका जाई के मदीने में कहना बजरिया, हम के बुलाला आका नगरिया, सबके बुलाला आका नगरिया। अरे आप मोरे आखियन से, अरे आप मोरे आखियन से जी, आप मोरे आखियन से, सावन 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 बार से, आका तोहरे मोर पार से, आंगना आका तोहरे नूर पार से।
आंगनामा आका तोहरे नूहर बारिश से। ये हमारे आरिफ भाई, इनकी मोहब्बत सलामत रखे। बीच में गड़बड़ा गया था मामला हम दोनों का, जी बता देता हूँ मैं, हम दोनों का बीच में मामला गड़बड़ा गया था। ये देखिए हमारे जाफर गान जो बस्ती है बहुत अच्छा बस्ती है, माशाल्लाह। हो जाता है कभी कभी। हम लोग की दोस्ती भी बहुत अच्छी थी पहले और अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी हो गई है। मैं शेर पढ़ता हूँ, इसी शेर को पढ़ता हूँ। अब सारे लोग खड़े हो जाएं, मैं शेर पढ़ूंगा। अगर मदीना जाने की तड़प है, मैं शेर पढ़ता हूँ कि जाई के मदीने में, जाई के मदीने में क्या कहना पाया रे सब बुलाया आपा में बाना गरिया, अरे सब बुलाया आपा में बाना गरिया। आप मोहरे आखियन से, आप सबके 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 आखियन से सावन 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 बारा से आंगनामा आका तोहरे नूहर बारा से, आंगनामा आका तोहरे नूहर बारा से, आंगनामा आका तोहरे नूहर बारा से, आंगनामा आका तोहरे नूहर बरसे। बैठ जाए सब लोग। सुभान अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।